Good morning, students. Today we are discussing solubility of the substance in liquid ammonia and we are discussing the chapter liquid ammonia as a solvent. अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड अमोनिया। तो ये सारे सब्सटेंस जो भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ जो लिखे हुए हैं ये सभी सॉल्युबल हैं। जैसे हमारा ये नाइट्रेट हो गया, थायोसाइनेट हो गया, परक्लोरेट, साइनाइड, ये सभी जो है अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं। और जो हमारा क्लोराइड और फ्लोराइड सॉल्ट्स है यानी कि BeCl2 एंड BeF2 और सोडियम का सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम फ्लोराइड, ये सिर्फ 4 सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया बट no other fluorides and chlorides are soluble in liquid ammonia. Then after ammonium salt in which those ammonium salt which have uninegative anion part and such type of salt are soluble in ammonium salt. कहने का मतलब हुआ जैसे जो भी अमोनियम सॉल्ट है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अमोनियम थायोसाइनेट, तो HCN के ऊपर -1 चार्ज है, या फिर अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर भी -1 चार्ज है, अमोनियम एसीटेट के ऊपर भी -1 चार्जेस है। तो मतलब वैसा अमोनियम सॉल्ट जिसके ऊपर -1 चार्जेस रहेंगे उस टाइप के कोई भी अमोनियम सॉल्ट है वो इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे मेटल अमाइड्स हैं, अल्काली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दे आर ऑल सॉल्युबल इन liquid ammonia and this salt means this metals ammonium aluminium, zinc, cerium, lanthanum, manganese and etc. These are the metal which have low solubility in the liquid ammonia solvent. And there are some non-metal, for example sulfur, phosphorus, iodine, these are soluble in liquid ammonia but they react विद द सॉल्वेंट। मतलब ये हुआ कि अगर हम सॉल्वेंट में इसको डिज़ोल्व करेंगे लिक्विड अमोनिया में ये सारे नॉन मेटल्स को, तो ये डिज़ोल्व हो जाएंगे मगर ये सॉल्वेंट के साथ कुछ न कुछ रिएक्शन कैरी करेंगे। इसके अलावा हैलाइड का जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है वो इस तरह है: आयोडाइड, ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड फ्लोराइड। ये मीन्स फ्लोराइड आर लेस सॉल्युबल एंड आयोडाइड्स आर मोस्ट सॉल्युबल। देन आफ्टर देयर आर सम organic compound which is more soluble in liquid ammonia. First one is halogen compound, next one is alkene. Alkenes are sparingly soluble. Then after alkene, alkyne and aromatic hydrocarbon and its derivatives are also soluble in liquid ammonia. And instead of this, alcohol, ketone, ester and simple ethers are also soluble in liquid ammonia. ये सारे सॉल्ट भी सॉल्युबल है। जैसे हम देख रहे हैं फर्स्ट वन में सॉल्ट हैविंग लार्ज यूनिनेगेटिव एनायन, मतलब ये हुआ कि ऐसे सॉल्ट जिसमें जो एनायनिक पार्ट है उसके ऊपर -1 चार्ज होना चाहिए और वो लार्ज एनायन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा साइनाइड आयन है, नाइट्रेट है, थायोसाइनेट आयन है। नेक्स्ट वन इज सॉल्ट हैविंग पोलराइजेबल मोइटी एंड थर्ड वन इज द सॉल्ट हैविंग मेटल आयन कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अमाइन कॉम्प्लेक्स। एंड फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट द सॉल्ट ऑफ nickel 2+, copper 2+, cobalt, platinum or palladium and so on. Such type of salt also capable of soluble in, means I mean to say that they are also soluble in the liquid ammonia as a solvent. And in spite of this there are some also salt which is not soluble in liquid ammonia. Let us see now. And these are the salts which are not soluble in liquid ammonia solvent, which is oxides, hydroxides and carbonate, phosphate, sulfate and sulfide. Means this type of salts are not soluble in liquid ammonia. And instead of this, in spite of this, fluorides and chlorides except of barium salt and sodium salts are insoluble, which means all fluoride salts and all chloride salts are not soluble in liquid ammonia, but the salt of barium chloride or barium fluoride and sodium chloride or the sodium fluorides, only these are soluble in liquid ammonia. Now our next topic is which type of metal is soluble in liquid ammonia. Let us see the metal having
लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो सब्लिमेशन एनर्जी, and having high solvation energy. Means the metal which have low ionization energy, low sublimation energy, but they must have high solvation energy are soluble in liquid ammonia. तो जैसा हम लोग देख रहे हैं, जैसे इसके लिए हम सूटेबल एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हम देखिए हमारा जैसे सोडियम मेटल हो गया, बहुत इजीली डिजॉल्व हो जाता है। पोटेशियम है, अल्काली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, दे ऑल आर सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। और हम देख सकते हैं कि जैसे सोडियम हो गया, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, उसका सब्लिमेशन एनर्जी भी कम होता है, और दे हैव हाई सॉल्वेशन एनर्जी, और इस कारण ये आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें और कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे EU मेटल हो गया, YB हो गया, ये सब मेटल्स भी जो है बहुत आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। इसके अभी हम लोग देखें कि किस प्रकार का मेटल जो है लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बताना चाहेंगे, जैसे लिक्विड अमोनिया में जो भी मेटल डिजॉल्व होते हैं तो वो सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब मेटल जो है सिर्फ डिजॉल्व रहता है, और इसके अलावा जो भी हमारा मेटल है वो लिक्विड अमोनिया के साथ कोई भी रिएक्शन कैरी नहीं करता, सिर्फ उसमें डिजॉल्व रहता है। इसके अलावा अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी और देखेंगे, जो भी मतलब मेटल जो लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होता है, यानी कि मेटल लिक्विड अमोनिया का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो पहला प्रॉपर्टी होता है कि ये जो कलर मतलब जो भी सॉल्यूशन है मेटल लिक्विड अमोनिया का, वो ब्लू कलर का होता है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हैव ब्लू कलर। सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं, विथ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ब्लू कलर चेंज टू ब्रॉन्ज कलरेशन। मतलब कि अगर हम जैसे ही मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो जो है कलर जो है आपका ब्लू कलर से ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, ब्लू कलरेशन एंड इट्स स्पेक्ट्रल बिहेवियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी मेटल डिजॉल्व हो, कैसा भी मेटल हम डिजॉल्व करेंगे, मतलब जो भी मेटल उसमें सॉल्युबल है, कोई भी मेटल सॉल्युबल रहेगा तो उस कंडीशन में मतलब मेटल एंड लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन का जो कलर है आपको ब्लू ही मिलेगा, ब्लू के अलावा कोई दूसरा कलर नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्पेक्ट्रल बिहेवियर, मतलब कि अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकली अगर हम इसको देखते हैं या फिर स्पेक्ट्रल बिहेवियर अगर हम देखते हैं तो वो जो है सेम रहता है। मतलब कि मेटल चेंज होने से उसका स्पेक्ट्रल बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड कलर जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन में ब्लू रहेंगे। इसके अलावा अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो उसका कलर ब्रॉन्ज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट कहता है कि कंडक्टिविटी ऑफ द ब्लू सॉल्यूशन इज कंपेरेबल विद दैट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब हुआ कि लिक्विड अमोनिया में जो मेटल डिजॉल्व किए हैं उसका जो कंडक्टिविटी होगा वो उसी मेटल का, अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो उसका जो कंडक्टिविटी होगा, दोनों का कंडक्टिविटी एक दूसरे के साथ कंपेरेबल होगा। कंपेरेबल होगा कहने का मतलब हुआ कि लगभग कम बेसी हम कह सकते हैं कि मतलब लगभग जो है समान होगा, मतलब बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कंडक्टिविटी वैरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। मतलब कि अगर हम मेटल चेंज करते हैं सॉल्यूशन में, मतलब अगर हम सपोज कीजिए कि सोडियम मेटल डिजॉल्व है एक सॉल्यूशन में, सेकंड सॉल्यूशन में अगर पोटासियम मेटल डिजॉल्व है तो दोनों का जो कंडक्टिविटी होगा वो अलग अलग होगा। इसके अलावा कहता है कि इट डिक्रीजेज, मीन्स कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर मेटल। मतलब कि अगर हम सॉल्यूशन में जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन जो है मेटल का इंक्रीज करेंगे उसका जो है कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
जो भी मतलब सॉलिड पार्टिकल्स है, कैटायंस है, उसका जो मूवमेंट में और जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो मूवमेंट में जो है प्रॉब्लम आने लगता है, क्योंकि जो मतलब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। एंड इसके अलावा कहता है कि देन आफ्टर, ये कहता है कंसंट्रेशन जैसे जैसे मतलब बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, लेकिन देन आफ्टर पासिंग थ्रू मिनिमम पॉइंट, मतलब कि कंडक्टिविटी एकदम जब लो पॉइंट पर आ जाएगा उसके बाद जो है इट अगेन इंक्रीजेज शार्पली, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, शार्पली, शार्पली विथ फर्दर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, मतलब कि जब कंडक्टिविटी एकदम डिक्रीज कर जाता है उसके बाद अगर हम और एक्स्ट्रा यदि हम मतलब मेटल डिसॉल्व करते हैं तो कंडक्टिविटी जो है फिर से बढ़ने लगता है। और उसके बाद कहता है कि एंड द सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक इन लिक्विड मेटल। कहने का मतलब हुआ कि अगर जब कंसंट्रेशन एकदम जब डाउन हो गया है उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा मेटल डिसॉल्व करते हैं तो कंडक्टिविटी फिर से बढ़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टिविटी होता है वो मतलब मेटल टू मेटल डायरेक्टली होने लगता है, मतलब कि अगर मेटल जैसे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसमें जो कंडक्टिविटी फॉलो करता है तो वो प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा मेटल अमोनिया सॉल्यूशंस आर काइनेटिकली स्टेबल ड्यू टू ओवर वोल्टेज फॉर द इवोल्यूशन ऑफ hydrogen molecule, and but it is thermodynamic unstable towards the reaction, and these are the reactions means due to these reactions these solutions are thermodynamically unstable। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि जब हम मेटल को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में तो होता क्या है कि वहाँ पर हमको अमोनिएटेड मेटल एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स उस सॉल्वेंट में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर वो प्रेजेंट ना रह करके ऐसा हो जाए कि मेटल जो है सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाए और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर ले मेटल अमाइड एंड हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर हमारा जो है ये जो सॉल्यूशन है वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एंड अमोनिएटेड मेटल, मतलब अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स और अमोनिएटेड मेटल्स जो प्रेजेंट रहते हैं उसके कारण सॉल्यूशन का कलर ब्लू रहता है। हमारा अगला पॉइंट है कि दिस एक्ट एज अ गुड मीडियम फॉर रिडक्शन रिएक्शन, यानी लिक्विड अमोनिया एंड मेटल का जो सॉल्यूशन होता है वो रिडक्शन रिएक्शन को कैरी कराने के लिए एक गुड मीडियम के रूप में एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेंट्रेटेड ब्रॉन्ज सॉल्यूशन शोज मेटालिक लस्टर एंड इट्स कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड सो ऑन एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ द मेटल। कहने का मतलब हुआ है कि जिस मेटल का सॉल्यूशन हम ले रहे हैं उस मेटल का सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है, अगर उसका जब हम कंडक्टिविटी देखें, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखें, या फिर जो वो मेटल का अगर हम देखेंगे या फिर अगर हम उस मेटल का ये सारा प्रॉपर्टी को देखेंगे तो ये दोनों कंपेरेबल होता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जब भी हम मेटल को डिसॉल्व करते हैं तो हमारा जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है वो इस दो प्रोडक्ट के कारण होता है। मतलब सबसे पहले मेटल को जब हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में तो हमको अमोनिएटेड मेटल मिलता है MnH3 होल X टू द पावर 1 पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन इन लिक्विड अमोनिया हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज। तो मीन्स ये जो है हमारा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है और ये अमोनिएटेड मेटल है। इन्हीं दो के कारण हमें यहाँ पर ब्लू कलर मिलता है। ड्यू टू presence of ammoniated electron density of the solution decreases। ये कहता है कि अगर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो उस सॉल्यूशन का डेंसिटी घट जाता है। देखिए ये है हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल, पिरामिडल स्ट्रक्चर, कहने मतलब बीच में अमोनिया है, उसके हाइड्रोजन है, बेंट है थोड़ा डाउनवर्ड, ऊपर में क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहता है।
तो ये जो है हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और तीनों हाइड्रोजन थोड़ा नीचे डाउनवर्ड है। और कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये कैविटी मॉडल इसको बोला जाता है। कैविटी मॉडल में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर जैसे ये नाइट्रोजन ये अमोनिया मॉलिक्यूल मैं रख रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक जो पीछे वाला हमारा हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन और ये जो फ्रंट में हाइड्रोजन है ये है, और इसके ऊपर में ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ठीक उसी तरह यहाँ पर और यहाँ पर ये 4 अमोनिया मॉलिक्यूल के बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा ये भी बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ द सॉल्वेंट मे इंटरैक्ट विद द प्रोटोन ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस प्रोटोन के साथ इंटरैक्ट भी कर सकता है, एंड ड्यू टू दिस रीजन दिस हाइड्रोजन आर लिबरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि जो सॉल्यूशन है उसका कंडक्टिविटी जो है होता है वो उस सॉल्यूशन में जो भी क्वासी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके कारण होता है, एंड द मोबिलिटी ऑफ दिस क्वासी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर 300 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अमोनिएटेड कैटायन। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कंडक्टिविटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज डिक्रीजेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ species where the ammoniated electrons get pair up। या फिर उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और अमोनिएटेड मेटल्स है वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज के साथ पेयर अप हो जाए या फिर 2+ चार्ज और 2- चार्ज के साथ पेयर अप हो जाए। मतलब ये 3 टाइप ऑफ स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड मेटल अमोनिया सॉल्यूशन में, जिसके कारण मतलब कंडक्टिविटी जो है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज कर जाता है। फ्रेंड्स, आपको एक और बात कहना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। और एक बात कहना था कि ये जो हमारा अभी ये जो सेशन चल रहा है इसमें हम लोग बीएससी का और उसके अलावा मतलब कि ये हम लोग स्पेशली CSIR नेट को फोकस कर रहे हैं, जिसमें जो भी चैप्टर अगर हमारा बीएससी या एमएससी में है तो उस चैप्टर का हम लोग बीएससी वाले पोर्शन को भी कवर अप कर रहे हैं, और बीएससी वाले पोर्शन आपको कवर अप करते हुए हम लोग जो है जो नेट में हमारा जो 10 साल में पूछा गया क्वेश्चन है या फिर जो नेट का सिलेबस है उसको उसके साथ मर्ज करते हुए हम लोग लेके चल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।